Video we are going to discuss the calculative concept of cross product. Now before we start, let us do a small revision. How do we calculate cross product? Now to calculate cross product, you must be knowing that we'll be using a determinant where the first row is occupied by I cap, j cap and k cap. The next row would be occupied by coefficient of the first vector and the next row would be occupied by coefficient of the second vector. Okay, so this is the first thing you should note in cross product. Number two, you should know, if you recall, the concept of unit vector perpendicular to both a bar and b bar. Okay, if you know, in this case it was plus or minus a bar cross b bar upon mod of a bar cross b bar. Okay, and the third thing which you should know before starting with this was area of triangle. That is a geometrical application of cross product. Okay, so using cross product we can find area of triangle. And what was the formula? It was half mod of cross product of any two sides. बराबर. Obviously इससे बेस हमने और बहुत सारे results develop किए थे, but these are the three major results which you should know before starting with this particular group. Okay, so let's start with the first question. If a bar is equal to I cap plus j cap plus k cap and b bar is equal to 2I cap minus j cap plus 2k cap, then find, now I'm adding three results into this. Okay, number one, a bar cross b bar. Number two is your unit vector perpendicular to both a bar and b bar. And number three is vector of magnitude 7 units and perpendicular to both a bar and b bar. Okay, now in all the three cases अपने को cross product तो निकालना ही पड़ेगा. Okay, so let us start with cross product. Okay, so in the solution we say, okay, so number one, we find a bar cross b bar. How do we find a bar cross b bar? Using determinant. Okay, in the first row we write I cap, j cap and k cap. In the second row we write the first vector, coefficient of the first vector, which is 1, 1 and 1. And in the next row we are going to write 2, minus 1, 2. Okay, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1, 1, 1 और यहाँ पे आएगा 2, minus 1, 2. You cannot write this 2, minus 1, 2 in the second row and 1, 1, 1 in the third row. ओके, ये ऊपर और ये नीचे कब होता है? जब हम बी क्रॉस ए का बात करेंगे. ठीक है, सो दैट ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट. नाउ यू ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग हाउ टू एक्सपांड द डिटर्मिनेंट. आई कैप ब्रैकेट में इज़ नॉट 1 इंटू 2 2 माइनस ऑफ दिस इज़ माइनस 1. ओके, प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना, माइनस ऑफ माइनस. नेक्स्ट इज माइनस जे कैप ब्रैकेट 2 minus 2 plus k cap bracket, if you see it is minus 1 minus 2. So what we get here, we get 3 I cap minus 3 k cap because j cap cancel हो जाएगा. ठीक है, let's take 3 common. What I get? I cap minus k cap. ठीक है, now what do we do now is number 2, अपने को निकालना है unit vector perpendicular to both a bar and b bar. Unit vector perpendicular to both a bar and b bar. Okay, now you must be knowing the formula. What is the formula? Plus or minus mod plus or minus a bar cross b bar upon mod of a bar cross b bar. Now what is a bar cross b bar का value we got? It is 3 bracket I cap minus k cap बराबर. अब इसका मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 तो रहेगा ही रहेगा. ओके, इनटू अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड. ठीक है, सो व्हाट वी गेट हियर, 3 3 गेट कैंसल. आई गेट प्लस और माइनस आई कैप माइनस के कैप अपॉन रूट 2. ठीक है, सो दिस द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार. नाउ द थर्ड रिजल्ट, दे वांट अस टू फाइंड वेक्टर of magnitude what 7 units and perpendicular to both a bar and b bar. ओके, सो अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा है तो हियर इज़ नॉट वी यूज़ अ फॉर्मूला विच सेज वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. ओके, बट यूनिट वेक्टर कौन सा? परपेंडिकुलर टू बोथ a bar and b bar, and therefore can I say vector is equal to, सब में मैग्नीट्यूड कितना दिया है 7 इंटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार बी बार. व्हाट इज द फॉर्मूला? प्लस और माइनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. सो लेट्स पुट द वैल्यू. तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे? प्लस और माइनस 7 ब्रैकेट ए क्रॉस बी अपॉन
mod of a cross b, ठीक है. So what is the value of a cross b given? It is nothing but I cap minus k cap और उसका मैग्नीट्यूड क्या मिला अपने को? √2, and that is your final answer. Okay, so now let's take the second question. In second question, they say if p bracket 1 comma 1 comma 0, q bracket 0 comma 1 comma 2 and r bracket 3 comma 1 comma 0, then find unit vector perpendicular to both pq bar and pr bar. Okay, so in this sum, what is the keyword? You can clearly see that the required is the biggest keyword, and that is unit vector perpendicular to both this. Okay, now जैसा हमने word perpendicular देखा, if you recall, I said perpendicular में how many concepts are there? 2. Okay, perpendicular to one vector or perpendicular to two vectors. Okay, अगर perpendicular to one vector बोला तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डॉट इक्वल टू ज़ीरो, और perpendicular to two vector आया तो क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, आई होप यू नो दिस नोट पॉइंट. नाउ विद दिस नोट पॉइंट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है perpendicular to both vectors. So let's find the solution. In this, let us write the formula first. We want unit vector perpendicular to both कौन सा वेक्टर? पी क्यू बार एंड पी आर बार. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? इज इट नॉट इट इज़ प्लस और माइनस ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, मतलब ये हमको निकालना है. नाउ लेट्स गो टू द सम. इसको हम रिजल्ट नंबर ए दे देते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इज नॉट वी हैव पी क्यू आर, तो हम लोग सबसे पहले पी बार, क्यू बार एंड आर बार निकाल देते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी बार? इज नॉट पी बार का वैल्यू इज आई कैप प्लस जे कैप कोऑर्डिनेट्स. ओके, क्यू का वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो क्यू का वैल्यू इज जे कैप प्लस 2k कैप. सो इट इज़ जे कैप प्लस 2k कैप. देन आर का वैल्यू इज 3i कैप प्लस जे कैप. ठीक है, नाउ विच आर द वेक्टर्स वी वांट? वी वांट पी क्यू बार. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ वेक्टर? टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. ठीक है, सो विच वन इज द टर्मिनल पॉइंट? इट इज जे कैप प्लस 2k कैप माइनस ऑफ पी बार, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप. चलो ब्रैकेट ओपन करो. इफ आई ओपन द ब्रैकेट, जे कैप विल गेट कैंसल. व्हाट आई गेट? माइनस आई कैप प्लस 2k कैप. पी क्यू बार रेडी. नाउ लेट्स गो फॉर पी आर बार. नाउ व्हाट इज पी आर बार का फॉर्मूला? आर बार माइनस पी बार. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर आर बार माइनस पी बार. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर बार? इट इज 3i कैप प्लस k कैप माइनस पी बार का वैल्यू इज व्हाट? आई कैप प्लस जे कैप. ठीक है, इफ आई ओपन द ब्रैकेट आई गेट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप. ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू बार एंड पी आर बार. हाउ डू यू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट? ऑब्वियसली यूजिंग डिटर्मिनेंट. ओके, फर्स्ट रो में क्या आएगा? आई कैप, जे कैप, के कैप. Okay, now let's put the coefficient of the first vector. What is the first vector? PR bar. So sorry, PQ bar. So we'll write PQ का coefficient. Now since there is no J, we write 0 here. ठीक है. So what I get here? -1, 0, 2. Okay, now let's go to PR bar. What is PR bar? It is this. So the coefficients are 2, -1, 1. ठीक है, now let's open the bracket. What I get? I cap bracket 0 minus of -2. I hope you understand this. ठीक है, minus J cap bracket -1 minus 2 2s are 4 plus k cap bracket is not, it is 1 minus 0, -1 into -1. ठीक है, so what I get here? 2 I cap minus minus plus plus 5 j cap plus k cap. ये कौन सा वेक्टर मिला? पी आर क्रॉस सॉरी पी क्यू क्रॉस पी आर. नाउ लेट्स फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट. पी क्यू क्रॉस पी आर इज इक्वल टू, इज नॉट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते? कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड. सो लेट अस टेक कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया और उसको ऐड कर लेते हैं. सो व्हाट इज दैट? √4 प्लस 25 प्लस 1 विच गिव्स मी √30. ठीक है, finally let's take both the results and substitute in A. So substituting, this is your result number 1, result number 2, substitute 1 and 2 in A. ओके, तो अगर मैं रिप्लेस करेगा तो कैन आई से यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ पी क्यू बार एंड पी आर बार इज इक्वल टू प्लस और माइनस. व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट? 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड √30. ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर रिजल्ट.
सो इट्स द सेम स्टोरी. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बोला तो दिमाग में आएगा प्लस और माइनस ए क्रॉस बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है. नाउ दैट ए एंड बी विल बी चेंजिंग बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. नाउ लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन ऑन दिस. फाइंड unit vector perpendicular to the plane of triangle ABC, okay, where your A is 1 minus 2 1, B is 2 minus 1 2 and C is minus 1 minus 1 minus 1. ठीक है. Let's start the sum. Now in this sum also we'll start with required first. What you want? You want unit vector perpendicular to the plane. Okay. Now just imagine you want a unit vector perpendicular to the plane. Okay. तो यहाँ पे solution में मुझे क्या दिख रहा है पता है? What I see is a plane. Okay. और वो plane के अंदर उन्होंने क्या दिया है? एक triangle दिया है. Okay. Triangle A, B and C. Now we know that to find unit vector perpendicular to a plane we need, यहाँ पे मुझे दिमाग में आ रहा है, we need two vectors in plane because unit vector perpendicular to both का जो concept है, both मतलब what, you need two vectors. okay. तो अगर मुझे दो vectors मिल गए ये plane में तो मेरा काम हो जाएगा. okay. And obviously using 3 points is not we can form two vectors. तो चॉइस आपका है, आप ए बी बार और ए सी बार ले लो, या फिर आप बी ए बार बी सी बार ले लो, या फिर आप सी ए सी बी ले लो. द चॉइस इज योर्स. ओके. द एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी सेम बिकॉज हमको तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन चाहिए और प्लेन में दो वेक्टर होना चाहिए. नाउ दैट टू वेक्टर्स कैन बी एनीथिंग. ओके. सो विद दिस कैन आई से हियर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का मतलब होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी बार एंड ए सी बार. एंड विद दिस मेरे हिसाब से आपका फॉर्मूला रेडी. इट इज़ नथिंग बट प्लस और माइनस ए बी बार क्रॉस ए सी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बी बार ए सी बार. एंड इट इज़ जस्ट लाइक नाउ योर प्रीवियस सम. ठीक है. सो लेट्स सॉल्व इट नाउ. कम ऑन फटाफट. सबसे पहले हम लोग क्या क्या निकालेंगे? ए बार बी बार एंड सी बार. Look at the coordinates. Is not coordinate of A is 1 minus 2 1. तो यहाँ पे आएगा I cap minus 2 J cap plus K cap बराबर. B बार का coordinate देखो. Okay. So what is B bar? It is 2 I cap minus J cap plus 2 K cap. C bar का coordinate what is that? minus 1 minus 1 minus 1. So I write minus I cap minus J cap minus K cap. ठीक है. Now let's find the two vectors. What is that? A B bar. What is the formula of A B bar? Terminal minus initial. So if I do the subtraction, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, I get I cap, नीचे से ऊपर माइनस तो ये प्लस हो जाएगा. So I get plus J cap और नीचे से ऊपर माइनस प्लस K cap. ठीक है. आप लोग डायरेक्टली मत करना प्लीज़. ठीक है. ए सी बार, व्हाट इज ए सी बार का फॉर्मूला? सी बार माइनस ए बार. ठीक है. तो सी में से ए को माइनस करेंगे तो व्हाट आई गेट? माइनस 2 I cap. हियर आई गेट माइनस तो आई गेट प्लस J cap. नीचे से ऊपर माइनस तो माइनस 2 K cap. ठीक है. सो आई गॉट टू वेक्टर्स नाउ. अब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले सकता हूँ. हाउ डू वी कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट? ऑब्वियसली वी यूज डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो में क्या आएगा? आई कैप जे कैप एंड के कैप. नेक्स्ट रो में वी राइट द फर्स्ट वेक्टर. फर्स्ट वेक्टर ए बार है तो 1 1 1 इन द सेकेंड रो, माइनस 2 1 माइनस 2 इन द थर्ड रो. तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2. ठीक है. सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट. आई कैप ब्रैकेट व्हेन आई क्रॉस मल्टीप्लाई आई गेट माइनस 2 माइनस 1 plus j cap bracket, sorry, minus j cap bracket is not, it is minus 2. ध्यान से देखना, minus of minus 2. ओके. बिकॉज ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ये माइनस आएगा बट बीच का माइनस रहेगा. ठीक है. प्लस के कैप ब्रैकेट 1 प्लस 2. प्लस क्यों हो गया? बिकॉज ये माइनस साइन बीच में प्लस कर देगा. ठीक है. सो विद दिस एम आई नॉट गोइंग टू गेट माइनस 3 आई कैप, ये तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. एंड प्लस 3 के कैप. व्हाट यू कैन टेक कॉमन? 3. व्हाट आई गेट? माइनस आई कैप प्लस के कैप. चलो ठीक है. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. हाउ डू वी फाइंड मैग्नीट्यूड? इज इट नॉट टू फाइंड मैग्नीट्यूड वी राइट -3 का मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट में क्या? कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड. सो -1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर. सो अगेन आई गेट 3√2. ठीक है. फाइन. रिमेंबर वन थिंग, स्केलर टर्म का मैग्नीट्यूड नहीं निकलता है. ठीक है. सो 3 का मैग्नीट्यूड 3 रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. ठीक है. चलो डन. विद दिस लेट अस पुट द वैल्यू. ये आपका रिजल्ट नंबर 1. रिजल्ट नंबर 2 कैन आई से सब्सटीट्यूट 1 and 2 in result A.
Therefore, unit vector perpendicular to plane of ABC is equal to, can I say plus or minus, ए बी बार का वैल्यू क्या है, माइनस आई कैप प्लस के कैप बराबर अपॉन 3√2. तो 3 गेट कैंसल एंड यू गॉट योर आंसर. ठीक है. अब यही समय अगर मैं बोलूँ फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, तो आप क्या करेंगे, ये आंसर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, बिकॉज दिस इज यूनिट वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स द वेक्टर. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ सम था. इट इज जस्ट दैट the way of asking is different and this is more important sum, that is sum number 3, because ये same concept हम use करेंगे chapter called plane. ठीक है, ये plane chapter के लिए ध्यान रखना. now there let me very clear, okay, वो लोग क्या बोलेंगे पता है, एक plane देंगे. ओके, आई बी आस्किंग यू प्लेन में कितने वेक्टर चाहिए आपको, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 वेक्टर. ठीक है, तो सम में जो डिटेल दिए उससे हम 2 वेक्टर निकालेंगे एंड देन आई विल आस्क यू दैट व्हाट यू डू विद दिस 2 वेक्टर्स. आप बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, जैसा आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आपको एक वेक्टर मिलेगा जो प्लेन को परपेंडिकुलर होगा. इन दैट चैप्टर वी कॉल दैट वेक्टर एज नॉर्मल वेक्टर, जो यहाँ पे ऐसे हम लोग शो करते हैं. ठीक है, आर यू गेटिंग इट. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ नॉर्मल वेक्टर, वो हम प्लेन चैप्टर में सीखेंगे. ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर. सो लेट मी आस्क यू द क्वेश्चन अगेन. ओके, अगर मैंने आपको प्लेन दिया, सो व्हाट इज द फर्स्ट थॉट, योर आंसर वुड बी यू नीड 2 वेक्टर्स इनसाइड द प्लेन. ठीक है, फिर मैं बोलेगा ये 2 वेक्टर का आप क्या करोगे, देन योर आंसर वुड बी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. ठीक है, एंड इफ आई से ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, तो आप बोलेंगे नॉर्मल वेक्टर देगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ नॉर्मल वेक्टर, एज आई सेड विल स्टडी इन द चैप्टर कॉल्ड प्लेन. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ इन दिस क्वेश्चन दे से इफ a bar is equal to 2i cap minus 3j cap plus 6k cap and b bar is equal to 2i cap minus 2j cap plus 2k cap, then find number 1 area of triangle with a bar and b bar as sides. ठीक है, number 2 area of parallelogram with a bar and b bar as adjacent sides, and third area of parallelogram with a bar and b bar as diagonals. ओके, अब ये तीनों एक साथ इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन देयर फॉर्मूला. ठीक है, नाउ इफ़ यू नो एरिया बोला तो दिमाग में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट तो लेना ही है. ठीक है, सो विच आर द की वर्ड्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगनल्स. ठीक है, पैरेललोग्राम में 2 पॉसिबिलिटी है, एडजेसेंट साइड्स एंड डायगनल्स. ठीक है, आई होप यू नो द कॉन्सेप्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे पता है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं. ओके, और फिर इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार, हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, यू यूज डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप. नेक्स्ट रो में ए बार का वैल्यू, व्हाट इज ए बार का वैल्यू, इट इज़ 2 - 3 6. व्हाट इज बी बार का वैल्यू, 2 - 2 2. ठीक है, चलो लेट अस कैलकुलेट, कम ऑन. व्हाट आई गेट हियर इज नॉट, आई गेट आई कैप ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा +12. ठीक है, -6 सॉरी, +12. okay, minus j cap bracket is not 2 2s are 4, 6 2s are 12 again. Okay, plus k cap bracket is not, I get -4 plus 3 2s are 6. I hope यहाँ तक समझा आपको. I repeat, -3 into 2 -6, 6 into -2 is -12, बट बीच में माइनस होता है इसलिए प्लस. ठीक है, जे कैप में क्या आएगा, 2 2s are 4 एंड 6 2s are 12. चलो ठीक है, के कैप में क्या आएगा, 2 2s are -4, 3 एंड दिस माइनस साइन है तो बीच में प्लस. ठीक है, सो विद दिस टेल मी व्हाट आई गेट हियर, इज नॉट आई गेट ए बार क्रॉस बी बार एज 6 आई कैप, हियर आई गेट +4 जे कैप, sorry it would be 8 j cap. okay, and here +2 k cap. okay, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. नाउ लेट अस फाइंड, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते तो व्हाट आई गेट, 3 आई कैप 3 2s are 6, 4 j cap plus k cap. ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. हाउ डू यू फाइंड मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, एज आई सेड 2 का तो मैग्नीट्यूड निकलेगा नहीं, स्केलर टर्म है, √ऑफ कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड. So what do I get here, 2 √of 3 3s are 9, 4 का स्क्वायर 16 +1, so is not, it is 2 √26 I will get. ठीक है,
अब लेट अस टेक द फर्स्ट रिजल्ट. पहला रिजल्ट ये बोलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला? हाफ इंटू मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स बराबर अकॉर्डिंग टू द सम. अगर आप देख रहे हो तो साइड्स कौन से हैं? ए बार बी बार जो हमने निकाला है. ओके, सो इट इज़ नथिंग बट हाफ इंटू 2√26. 2 गेट कैंसल, √26 यूनिट्स का स्क्वायर, बिकॉज एरिया का बात हो रहा है. ठीक है, अब यूनिट स्क्वायर नहीं भी लिखा तो चलेगा यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ वेक्टर कॉन्सेप्ट. ठीक है, नंबर 2, लेट्स गो टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, अगर याद है तो पैरेललोग्राम ट्राइंगल के एरिया का ट्वाइस होता है. ओके, सो कैन वी से अगर मैंने ट्वाइस किया तो वो 2 कट हो जाएगा. सो व्हाट आई गेट हियर, इट इज़ नथिंग बट मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ. अब एडजेसेंट साइड चलेगा कि एनी टू साइड? सो इट हैज़ टू बी एडजेसेंट साइड्स. याद है तो मैंने बोला था एनी टू साइड्स क्यों नहीं लिखते, बिकॉज अपोजिट साइड हो गया तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, बिकॉज दे आर पैरेलल. ठीक है, सो अगेन अगर सब में देख रहे तो क्लियरली बोला है ए बार बी बार आर द एडजेसेंट साइड. तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार मतलब यहाँ पे आंसर 2√26 यूनिट्स आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर. ठीक है, एंड फाइनली द थर्ड रिजल्ट. ओके, ऑब्वियसली एग्जाम में तीनों एक साथ तो आपको नहीं पूछेंगे. ठीक है, इट विल बी एनी वन ऑफ द रिजल्ट. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नाउ प्लीज ध्यान रखना, व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, ओके, विथ ए बार एंड बी बार एज डायगोनल्स. ओके, एंड इफ़ यू रिकॉल मैंने बोला था डायगोनल्स अगर वर्ड आया तो आपको हाफ डालना पड़ेगा. ओके, मॉड ऑफ क्रॉस product of diagonals. Okay, and here the diagonals are a bar and b bar. Okay, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? It would be nothing but half of mod of a bar cross b bar. So it is 1/2 again 2√26. 2 get cancel, √26 square unit. Okay, or I better say unit square. I hope you got an idea. Okay, so what I wanted to highlight is the three formulas basically. Half of cross product of any two sides. Okay, area of triangle का formula याद आ गया. ठीक है, area of parallelogram with the sides given तो it is half आएगा नहीं, बट अगर diagonal बोला तो फिर वापस half आ जाएगा. ठीक है, rest inside stuff is going to be same. ठीक है, it is mod of a cross b, mod of a cross b, mod of a cross b. ठीक है, ठीक है. Now let's move to the next sum. And I'll show you the different way of asking them this type of question. Okay, so next question. The next question would be find area of triangle PQR where P is 1 minus 2 3, Q is 0 1 minus 1 and R is 2 1 0. ठीक है, what do we want? We want area of triangle. Now area of triangle का formula क्या है? It is half of mod of a bar cross b bar नहीं बोलने का. As I said, a bar b bar are the reference vectors. ठीक है, so you better read the formula. The formula says half of mod of cross product of any two sides. Okay, तो आपने sides बोला और सब में अगर आप देख रहे हो तो आपको मैंने क्या दिया? वर्टाइसिस दिया है. ठीक है, सो द फर्स्ट एम इज टू कन्वर्ट द वर्टाइसिस इनटू साइड्स. ओके, सो इन द सोल्यूशन कैन आई से एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स. चलो, अब जैसे मैंने बोला एनी टू साइड्स. ओके, कीप दिस इन माइंड. अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी को दिमाग में रखता हूँ एंड आई थिंक ऑफ एनी टू साइड्स, तो लेट्स थिंक ऑफ अ डायग्राम हियर. ओके, ज़रूरत नहीं ड्रॉ करने का, बट आपको समझाने के लिए. ठीक है, इफ़ आई वांट एनी टू साइड्स कैन आई से पी क्यू बार एंड पी आर बार. आई रिपीट ऑलवेज व्हेन यू टेक डॉट और क्रॉस, ओके, प्लीज़ मेक श्योर द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज आउट गोइंग और इनकमिंग. वी प्रीफर आउट गोइंग. So with this area of triangle PQR क्या हो गया? Is not, it is nothing but half of mod of PQ bar cross PR bar and all set now. आपका फॉर्मूला तैयार हो गया. अब इसमें वैल्यू डालते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ सबसे पहले P बार, Q बार एंड R बार. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P बार गिवन? P बार इज I कैप प्लस J कैप बराबर 1. P बार का वैल्यू इज I कैप माइनस 2J कैप, I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप बराबर. Q बार का वैल्यू क्या दिया है? J कैप माइनस K कैप, बिकॉज I नहीं है, और R बार का 2I प्लस J कैप. ठीक है, अब कौन से दो वेक्टर अपने को निकालने हैं? वी फाइंड पी क्यू बार. हाउ डू वी फाइंड पी क्यू बार? Q बार माइनस P बार.
ठीक है, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। नीचे से ऊपर जब माइनस करेंगे तो माइनस आई कैप आएगा, नीचे से ऊपर माइनस किया तो प्लस 3 जे कैप आएगा, नीचे से ऊपर माइनस किया तो माइनस 4 के कैप आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू पी आर बार। व्हाट इज पी आर बार माइनस पी बार, दैट इज टर्मिनल माइनस इनिशियल। चलो आर में से पी को माइनस करते हैं, नीचे से ऊपर माइनस आई कैप, नीचे से ऊपर माइनस 3 जे कैप, और यहाँ पे आएगा माइनस 3 के कैप। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट, पी क्यू बार क्रॉस पी आर बार। ओके, हाउ डू वी कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट? डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में क्या, आई कैप, जे कैप, के कैप। ओके, नाउ ऐड पी क्यू बार। व्हाट इज पी क्यू बार का वैल्यू? -1 3 -4, एंड पी आर बार इट इज़ 1 3 -3। चलो क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हैं, आई कैप ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आएगा 3 3 -9, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 12, माइनस जे कैप ब्रैकेट, -3 इंटू -1 इज 3, माइनस प्लस 4 1 4, प्लस के कैप ब्रैकेट बराबर यहाँ पे आएगा -3 प्लीज़ आई रिपीट, जब भी आप डिटर्मिनेंट ओपन करते हो ये साइन का स्पेसिफिकली ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ होने का चांस है। फाइन, चलो लेट्स कंटिन्यू। सो व्हाट आई गेट हियर, आई गेट 3 आई कैप, here I get -7 j cap, here I get -6 k cap, and all set now। चलो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मॉड ऑफ पी क्यू बार क्रॉस पी आर बार, व्हाट इज दैट? इट इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ कोइफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड। सो व्हाट डू आई गेट हियर? अंडर रूट ऑफ 9 + 49 + 36। ओके, 36 + 49 is 45, 45 if I add I get root of 94, isn't it? Okay, 45 and 49, yes, I get root of 94. You can keep it there only. So finally, can I say area of triangle PQR is equal to half of under root of 94. Okay, so with this we got the square unit, area of triangle PQR. ओके, सो बेसिकली इन दिस सम क्या सीखने मिला? अगर वर्टाइसिस दिया तो साइड बनाओ, बाकी फॉर्मूला तो वही है। ठीक है, चलो लेट्स टेक द नेक्स्ट सम। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, ये था क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ इट सेज फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are एक सेकेंड है, फाइन, नीड द सम बिकॉज डायगोनल तो ऑलरेडी हमने कर दिया। ठीक है, सो लेट्स चेंज द सम नाउ, लेट्स गो टू अ न्यू कॉन्सेप्ट हियर। इफ द वेक्टर्स C bar comma A bar that is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, and B bar is equal to j cap, okay, are such that A bar, C bar and B bar forms right handed system, then find C bar। okay, चलो ठीक है। Now in this sum we come across a very new word which is right handed system। please don't mix up with right handed rule, वो अलग होता है, ये अलग होता है। and see the order of the vectors। ओके, अब ये समझाने के लिए एक मैं हिंट लिखा रहा हूँ ना, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड दिस टू द सिनॉप्सिस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में ये एडिशनल पॉइंट ऐड कर देना। ठीक है, नाउ नोट है ये राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, एक्चुअल विजुअलाइजेशन जब आप रिवीजन करेंगे तब आई एक्सप्लेन व्हाई इट इज कॉल्ड राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, सो सपोज आई से P बार, Q बार एंड R बार फॉर्म्स राइट हैंडेड सिस्टम।
ओके तो आपको क्या करना है पता है, उसका पहला ऑर्डर लिख लेना है एंड दैट ऑर्डर गिवन एज पी बार, क्यू बार और आर बार। ओके और फिर आपको राइट साइड में क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर आर बार को देख रहे हो तो आर के आप राइट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। सो वी कम बैक टू पी अगेन और ये आपका एक साइकिल बनेगा। अगर आप समझ रहे हो तो ये साइकिल राइट साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। पी से पी के राइट में क्यू, क्यू के राइट में आर, आर के राइट में कुछ नहीं इसलिए पी, ठीक है। नाउ ये साइकिल का इंटरप्रिटेशन क्या है दैट अगर आपने पी और क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आपको आर बार मिलेगा, ठीक है। क्यू बार का क्रॉस प्रोडक्ट आर बार से लिया, नाउ क्यू और आर का राइट साइड में कुछ नहीं है तो वी गो टू पी बार मिलेगा, ओके और आर का क्रॉस पी से लिया तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्यू मिलेगा, ठीक है। सो आर बार क्रॉस पी बार इज इक्वल टू क्यू बार। दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड सिस्टम। आर यू गेटिंग इट? ओके तो आपको राइट साइड में मूव करना है, ठीक है। सो दैट ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट एन आइडिया। ओके सो हियर दे से, देखो सब में कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ए बी सी नहीं दिया, सी दिया, ए दिया, बी दिया, रैंडम ऑर्डर दिया, बट देन वी आर बॉदर्ड अबाउट दिस ऑर्डर। ओके तो यहाँ पे सोल्यूशन में विल स्टार्ट सेइंग दैट सोल्यूशन में सिंस ए बार, सी बार, बी बार फॉर्म्स व्हाट, राइट हैंडेड सिस्टम। और जैसा बोला राइट हैंडेड सिस्टम हम लोग कैसे मूव करेंगे, राइट साइड में, ठीक है। सो ए और सी गिव्स बी, सी और बी गिव्स ए और बी क्रॉस ए गिव्स सी, ठीक है। तो ये आपका थॉट दिमाग में आना चाहिए व्हेन एवर यू से राइट हैंडेड सिस्टम। नाउ व्हाट विच वेक्टर दे वांट सी बार। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सी बार का वैल्यू कैन आई से बी बार क्रॉस ए बार एंड दैट इज योर रिजल्ट ए। और यहाँ पे रिजल्ट ए का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। हाउ डू वी फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट? वी यूज डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो में क्या आएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप, बराबर। नेक्स्ट रो में बी बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बार गिवन इन द सम। अगर आप देख रहे हो तो बी बार का वैल्यू इज जे कैप और जे कैप का मतलब होता है 0 1 0 बिकॉज आई और के नहीं है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बार गिवन, अगर सम में आप देख रहे हो तो ए बार का वैल्यू एक्स वाई जेड है। सो कैन आई से हियर इट इज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट, व्हाट आई गेट, आई कैप ब्रैकेट इज नॉट, यहाँ पे आएगा जेड माइनस 0, ओके, माइनस जे कैप ब्रैकेट 0 माइनस 0 प्लस के कैप ब्रैकेट इफ यू सी 0 माइनस एक्स, ठीक है। सो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, जेड आई कैप माइनस एक्स के कैप, ठीक है। अगर यही सेम सम में इफ इट इज गिवन दैट, ओके, इन द सेम सम लेट्स से हम लोग ऑर्डर बदल रहे हैं, सी बार, बी बार, ए बार फॉर्म्स लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। Now tell me what I mean by left-handed system. Any guesses? C बार, B बार, A बार है। अब राइट हैंड सिस्टम में हम राइट साइड मूव किया तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में हम लोग कहाँ पे मूव करेंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है। सो आई गेट A क्रॉस B इज इक्वल टू C, B क्रॉस C इज इक्वल टू A और C क्रॉस A इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मूव करना है। सो कैन आई से द इंटरप्रिटेशन, आई रिपीट, A क्रॉस B क्या देगा आपको, C बार देगा, B क्रॉस C क्या देगा, A बार देगा एंड C क्रॉस A विल गिव यू व्हाट, ओके, विल गिव यू बी बार। एक काम करते हैं, लेट अस कीप द ऑर्डर स्पेसिफिक, ए बी सी रखते तो सो दैट यू नॉट गेट कन्फ्यूज। सो नाउ टेल मी, चलो अगर मैं चेंज करता हूँ, लेट्स से पी क्यू आर, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। इफ़ आई से पी क्यू आर, कम ऑन। सो नाउ दिस इज़ योर पी बार, क्यू बार, आर बार, ओके, दिस फॉर्म्स लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, ओके, आर के लेफ्ट में जाएंगे। सी स्टार्ट राइट से किया है बट वी गो टूवर्ड्स लेफ्ट, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो आर से क्यू, क्यू से पी, पी से आर। सो नाउ टेल मी व्हाट इज आर क्रॉस क्यू, इट इज पी बार, क्यू क्रॉस पी, व्हाट इज दैट, आर बार, एंड पी क्रॉस आर, दैट इज नथिंग बट क्यू बार। दिस रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ठीक है। सो जस्ट कीप इन दिस पर्टिकुलर इन योर माइंड। सो ये आप है ना, आप सिनॉप्सिस में ऐड कर देना, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम एंड राइट हैंडेड सिस्टम। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 5, दिस वन इज योर 6। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। चलो ठीक है, अब ये हमने डॉट प्रोडक्ट में किया हुआ है तो आई एक्सपेक्ट वंस आई एम डन राइटिंग द क्वेश्चन, जरा याद करके ट्राई टू गेट सम आइडिया अबाउट दिस सम, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखना, ठीक है। द क्वेश्चन इज फॉर एनी वेक्टर a bar show that
mod of a bar cross I cap the whole square, mod of a bar cross j cap the whole square, mod of a bar cross k cap the whole square is equal to 2 mod of a square. Important for CET. चलो जस्ट याद करो क्या किया था यहाँ पे. कैन यू आइडेंटिफाई द की वर्ड इन दिस. ओके, सोच लिया, ठीक है. नाउ अगर जिन्होंने अच्छे से रिवीजन किया रहेगा डॉट प्रोडक्ट का, तो पहले तो हम लोग हर समय क्या डिसाइड करते हैं, वेदर इट इज़ थियोरेटिकल और कैलकुलेटिव. बराबर, ये कौन सा सम है, कैलकुलेटिव सम है. बराबर, सो इट्स अ कैलकुलेटिव सम. तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आई नीड ए बार, अगर आप देख रहे हो तो. और सम में क्या बोला है, एनी वेक्टर ए बार. उन्होंने वेक्टर दिया नहीं है, तो कैलकुलेटिव सम वेक्टर नॉट गिवन. याद करो क्या करते हैं, इफ द वेक्टर्स आर नॉट गिवन इज नॉट वी अज्यूम. ठीक है, तो ये नोट पॉइंट आपके दिमाग में आ गया तो मेरे हिसाब से सम खत्म. सो व्हाट डू वी डू हियर इन द सोल्यूशन. ओके, हम लोग क्या करेंगे, पहले एक वेक्टर को अज्यूम कर देंगे. ठीक है, सो लेट ए बार इज इक्वल टू व्हाट, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. मैंने क्या बोला था, जब भी आप अज्यूम करेंगे आपका पहला काम उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दो. यू नेवर नो, अपने को काम लग सकता है. तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, नाउ लेट अस टेक एल एच एस. मुझे एल एच एस निकालना है, तो एक एक काम करते, एक एक करके फाइंड करते. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद ए बार क्रॉस आई कैप. ठीक है, हाउ डू वी फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, कम ऑन, वी यूज़ डिटर्मिनेंट. बराबर, फर्स्ट रो में क्या, आई कैप जे कैप के कैप. चलो सेकेंड वेक्टर कौन सा आएगा, ए बार. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बार, हमने लिया एक्स वाई जेड. ओके, अब जरा ध्यान से देखना मैं कैसे एंट्री कर रहा हूँ. द नेक्स्ट वेक्टर इज आई बार. ओके, आई बार का एंट्री कैसा होगा, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ आई, इट इज़ 1. सो आई राइट 1 हियर. इन दिस वेक्टर देर इज़ नो जे, देर इज़ नो के, सो आई विल एंटर 0 0. ठीक है, सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना. लेट्स ओपन द ब्रैकेट, व्हाट आई गेट, आई कैप यहाँ पे 0 माइनस जे कैप इज़ नॉट, इट वुड बी 0 माइनस जेड. ओके, प्लस के कैप, व्हाट आई गेट 0 माइनस वाई. ओके, सो विद दिस इफ आई ओपन आई गेट जेड जे कैप माइनस वाई के कैप. ठीक है, बट एक सेकेंड, अगर आप सम देख रहे हो तो मुझे एक क्रॉस आई में इंटरेस्ट नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है. ठीक है, सो लेट्स टेक मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस आई कैप. हाउ डू यू फाइंड मैग्नीट्यूड, इज नॉट अंडर रूट ऑफ कोइफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड. ठीक है, सो व्हाट आई गेट, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर सीक्वेंस में डाल दिया तो. एंड वन मोर थिंग, आई वांट उसका स्क्वायर, और जब मैं उसका स्क्वायर करेगा अंडर रूट गायब हो जाएगा. एंड दैट्स हाउ यू गेट रिजल्ट नंबर 1. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, ए बार क्रॉस जे कैप, ए बार क्रॉस के कैप. बराबर, प्रैक्टिस के लिए आप रफ में कर देना. यहाँ पे हम सिमिलरली कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप ध्यान से देख रहे हैं रिजल्ट को, तो आई में आई गायब हो गया. आई गायब हो गया मतलब कोएफिशिएंट ऑफ आई, दैट इज एक्स इज नॉट देयर. ठीक है, सो अगर मैं आपको बोलूँ लुकिंग एट द प्रीवियस रिजल्ट, व्हाट इज आई क्रॉस जे का आंसर. ओके, तो जे गायब हो जाएगा मतलब वाई गायब हो जाएगा. सो आई गेट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रिजल्ट नंबर 2. एंड ए बार क्रॉस के कैप का स्क्वायर, दैट इज के गायब हो जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रिजल्ट नंबर 3. सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट अस टेक एल एच एस. एल एच एस क्या था, मॉड ऑफ ए क्रॉस आई का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस के का स्क्वायर. सो इज़ नॉट, यहाँ पे मुझे क्या मिला, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे मिला एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, सो इफ आई ऐड इट, व्हाट आई गेट 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. बट एक सेकेंड, ये तो देखा हुआ लगता है. अगर आपको ये आइडिया है तो ये मॉड ऑफ ए हो गया विच वॉज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब यहाँ तो अंडर रूट है नहीं, तो कैन वी राइट दिस एज 2 मॉड ऑफ ए द होल स्क्वायर, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. ठीक है, सो आई रिपीट अगेन, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. दिस विल अगेन रिपीट इन द प्रीवियस 2 टाइप्स. ओके, सॉरी नेक्स्ट 2 टाइप्स. ओके, इन दोज नेक्स्ट 2 टाइप्स द सेम टाइप ऑफ सम विल कम, जहाँ पे लिखा रहेगा एनी वेक्टर ए बार. ओके, और वो कैलकुलेटिव सम होगा. सो अगर कैलकुलेटिव सम है और एनी वेक्टर बोला है तो हम क्या करेंगे, उसको अज्यूम करेंगे. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो हियर वी डन विद क्वेश्चन नंबर 7. Now let's move to the last question, question number 8. Now this is something to do with your physics, you know. जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में याद है तो एक सम किया था वर्क डन, याद आ रहा है क्या. वर्क डन इज़ व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर मल्टीपल फोर्स दिए रहेंगे तो हम उसको ऐड करते थे. ठीक है, चलो वैसा ही कुछ ये सम है. द क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 49 यूनिट्स
is in the direction of 2i cap plus 3j cap plus 6k cap x at a point 1 comma 1 comma 1, then find the moment of force about -1 2 3. ठीक है. सो हियर व्हाट डू फाइंड इज मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर. और मोमेंट ऑफ फोर्स को अगर याद है तो आप फिजिकल टर्म में बोलेंगे टॉर्क. कुछ याद है क्या? और टॉर्क का फॉर्मूला इफ़ यू कैन रिकॉल वॉज एफ बार क्रॉस ए बी बार, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकालने को जाते हैं तो. ठीक है. बट देन दिस फॉर्मूला इज़ रॉन्ग. ओके. ना आई जस्ट वांट यू टू रिफर. अगर आपने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा रहेगा तो आपने लिखा रहेगा आर बार क्रॉस एफ बार. Okay, now at that point there should be one doubt in your mind, why not f bar cross r bar? Now I want you to ask this question to your physics sir and get an idea, because he can explain you in a better way why f does not precede a b bar. तो ये जो फॉर्मूला है वो गलत है. अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आंसर गलत आएगा. इट शुड बी ए बी बार क्रॉस एफ बार. ठीक है. और अगर आपका इसका आंसर आता है आपके पास तो प्लीज़ लेट मी नो. आई जस्ट वांटेड टू हियर फ्रॉम यू. ठीक है. सो टॉक का फॉर्मूला इज़ ए बी बार क्रॉस एफ बार. फिलहाल के लिए बाहर कर लो. वेयर दिस ए रिप्रेजेंट अबाउट पॉइंट बराबर, एंड दिस बी इज पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड. ओके, ये आप क्लियर कर दो. फाइन. एंड विद दिस मेरे हिसाब से सम खत्म. अब कुछ नहीं, खाली अपने को डिटेल्स यहाँ पे रखने हैं. ठीक है. सो पहला ये चीज़ आई रिपीट अगेन. टॉर्क का मतलब एफ बार क्रॉस ए बी बार नहीं होगा, ए बी बार क्रॉस एफ बार होगा. आपको ये मुझे बताना है कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है. एंड इन दिस ए फॉर अबाउट, वेरी इजी. ओके. तो इसमें भी आप उल्टा नहीं लिख सकते हो, बी ए नहीं, इट शुड बी ए बी. ये भी आप जरा फिजिक्स टीचर को पूछ लेना. ठीक है. सो विद दिस लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे हम लोग डेटा लिख लेते हैं सोल्यूशन में. डू यू फाइंड सोल्यूशन में सबसे पहला आप निकालो अबाउट पॉइंट. Do you find the about point? Yes, about point is -1 2 3 बराबर. चलो, do you find the point where the force is applied? Come on, क्या कहाँ पे force apply हुआ? 1, 1 पे. चलो, do you find the force? ओके. नाउ क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो तो फोर्स नहीं दिख रहा है मुझे दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. और ये हमने ऑलरेडी अभी अभी किया था. मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अगर दिया है तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे दिमाग में आएगा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. अब एक सेकेंड, डोंट बी इन हरी टू राइट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ. ओके, प्लीज़ ध्यान से देखो. पहले उसमें दिखा रहेगा इन दिस सम इज इट परपेंडिकुलर टू बोथ? नो. क्लियरली इन द सम इट इज गिवन दैट इन द डायरेक्शन ऑफ ओके दिस वेक्टर. सो एक काम करते हैं, एक वेक्टर का नाम दे देते हैं. लेट्स से पी बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप बराबर. और अब बताओ आपका फोर्स एफ बार किसके अलॉन्ग है? तो कह रहे हैं से मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पी बार. ये अगर आप समझ गए तो मेरे हिसाब से इस सम का सबसे टफ पार्ट आपने समझ लिया. और ये ऑलरेडी हमने डॉट प्रोडक्ट में बात किया है डिटेल में. ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू नाउ. व्हाट इज दैट? एफ बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना दिया 49 इंटू व्हाट इज यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. लेट्स पुट द वैल्यू 49 ब्रैकेट. व्हाट इज पी बार का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट में कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड. चलो ठीक है. सो व्हाट आई गेट हियर 49 ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. अगर आप डिनोमीटर में देख रहे हो तो अपॉन रूट 49 आएगा. 36 प्लस 4 40 और 9 49. रूट 49 इज 7. ध्यान रखना 49 नहीं. ठीक है. कट होके यहाँ पे 7 बचेगा. सो व्हाट यू गॉट हियर 7 ब्रैकेट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप. और ये आपका फोर्स रेडी हो गया. ठीक है. सो आपका एफ बार रेडी. अब हम ए बी बार भी निकाल देते हैं बिकॉज अपने को ए बी बार क्रॉस एफ बार करना है. व्हाट इज ए बी बार का फॉर्मूला? बी बार माइनस ए बार. ओके, ये आप ऊपर भी फाइंड कर सकते थे. ठीक है. सो इफ़ आई डू बी बार माइनस ए बार, नीचे से ऊपर माइनस, आई गेट 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप. ठीक है. चलो, विद दिस ऑल सेट नाउ देयरफॉर कैन आई से मोमेंट ऑफ फोर्स is equal to AB bar cross F bar. How do we find cross product? Determinant. फर्स्ट रो में क्या? I cap J cap K cap.
What is AB bar? 2 minus 1 minus 2. And what is F bar? We got 7. Now ध्यान से देखना, this 7 is a scalar. ओके और वो स्केलर को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? बाहर. प्लीज़ याद रखना, ठीक है. सो यू कैन राइट योर स्केलर हियर आउटसाइड द डिटर्मिनेंट. ओके अंदर लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा 2, 3 एंड 6. एवरीवन गॉट द आइडिया? चाहिए तो यहाँ पे स्टार मार्क कर देना, ठीक है. So let's proceed further. So what I get here? 7 bracket. Here I get 7. I cap bracket. What I get? Minus 6 plus 3 2 is 6. बराबर ना? यहाँ पे प्लस आ जाएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. माइनस जे कैप ब्रैकेट 6 2 ज़ा 12. यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो 4 बराबर प्लस के कैप ब्रैकेट 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 बराबर एंड कर्ल ब्रैकेट क्लोज. फाइनली आई गेट 7. ओके फाइनली आई गॉट व्हाट 7 इज़ नॉट. ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 6 कैंसिल. तो यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में इज़ नॉट माइनस 12 and this is 16 j cap and here plus 8 k cap. चलो एक काम करते 8 को कॉमन ले लेते. 8 को कॉमन लिया तो 8 7 ज़ा 56. यहाँ पे आएगा माइनस 2 j cap प्लस k cap and that is your moment of force. और याद रखना moment of force is a vector quantity and that is why the answer is in vector form and not scalar. Work done was a scalar quantity. तो आंसर देखना जाके वहाँ पे scalar value मिला रहेगा, ठीक है. So with this we have done with all the varieties of कैलकुलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. नो डाउट इसमें टफ सम्स आएंगे बट ये सब CET लेवल के सम्स थे जो मैंने कंप्लीट किए, ठीक है. फाइन. सो टिपिकल सम विल बी डिस्कसिंग इन द अनदर वीडियो.